السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ جنگ جمل میں لن یفلح قوم ولو امرہم امراتن بھی اہل نظر ہے۔ حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اسے سب سے پہلے جنگ جمل کے ایام میں سنا گیا اور یہ اسی زمانے میں منا شہود پر آئی۔ قبل اسے کسی صحابی نے نہیں سنا تھا۔ اگر کسی کے گوش گزار ہوئی تھی تو وہ ضرور اس کی تائید توثیق کرتے اور امت ایک بہت بڑی جنگ سے بچ جاتی، یا کم سے کم اس قدر وسیع پیمانے پر جانی نقصان نہ ہوتا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں لقد نفعني اللہ بکلماتی سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام الجمل۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنگ جمل کے دنوں میں ایک بات سے بہت فائدہ پہنچایا جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا۔ وہ بات کیا تھی؟ وہی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اہل فارس کسرا کی بیٹی کو اپنا ملکہ بنا لیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنے معاملات کا اختیار ایک عورت کے سپرد کر دیا۔ حضرت ابو بکر کے حسب روایت یہ حدیث انہیں اس وقت یاد آئی کہ جب حضرت عائشہ نے فوج کی کمان باقاعدہ سنبھال لی تھی۔ اس حدیث نے حضرت ابو بکر کو فائدہ پہنچایا، گویا وہ جنگ جمل میں شرکت سے بچ گئے۔ جنگ جمل جمادی الثانی 36 ہجری میں بصرہ کے قریب ہوئی۔ اس میں ایک طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے اور دوسری طرف حضرت عائشہ تھیں۔ ام المومنین کے ساتھ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن العوام ایسے جلیل و قدر صحابی بھی تھے۔ حضرت عائشہ میدان جنگ میں عسکر نام ایک اونٹ پر سوار تھے اور وہی لڑائی کا مرکز بن گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق ام المومنین حضرت حفصہ اس جنگ میں حضرت عائشہ کے زیرِ کمان شرکت کا ارادہ رکھتی تھیں، مگر انہیں ان کے بھائی عبداللہ بن عمر نے روک دیا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے خلافت کا دعویٰ فرمایا، نہ لوگوں کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف اکسایا۔ وہ تو فقط شہادت عثمان کی قصاص کا عزم لے کر اٹھیں کہ اگر بھائیوں سے خلیفہ مظلوم کا انتخاب نہ لیا گیا تو ہر آنے والے قائد کو ناحق قتل کرنے کی رسم پڑ جائے گی۔ حالات اس قدر دیگر گم ہو چکے تھے کہ سیدنا حضرت عثمان کی قاتلین نے اقتدار پر مکمل طور پر اپنا تسلط جما لیا تھا اور ظاہر میں سیدنا حضرت علی کو خلیفہ بنا کر زمام کار خود سنبھال لی تھی۔ حضرت علی کی حیثیت محض ایک محصور خلیفہ کی ہو کر رہ گئی تھی۔ تبری کے بقول حضرت عائشہ کا مطالبہ تھا کہ قاتلین عثمان سے قصاص لیا جائے، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کہنا تھا کہ میں ان لوگوں کو کیسے گرفتار کروں جنہوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، بس حالات قدرے پرسکون ہونے دیں تاکہ میرے لیے حقوق کی وصولیات آسان ہو جائے۔ ابن کثیر کا بیان ہے حضرت علی کے احکام اور اوامر و نواہی کے فسادی کھلم کھلا مخالفت کرتے تھے اور خلیفہ کی اقوال و افعال سے دور رہتے تھے۔ ان کا یہ طرز عمل ان کی جہالت، کم فہمی، بے حسی، کند ذہنی اور ان میں سے اکثر کے فسق و فجور کا رہین منت تھا۔ قاتلین عثمان میں اکثریت سبائیوں کی تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے ساتھ ہی خلفائے ثلاثہ کے خلاف باری باری حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گرد غالیانہ تقدس کا تانا بانا بننا شروع کر دیا تھا اور انہوں نے خلیفہ چہارم کو تمام صحابہ سے برتر ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ انہی میں سے ایک فرقے نے یہ عقیدہ اختیار کر لیا تھا کہ حضرت علی میں الوہیت کی تمام صفات موجود ہیں۔ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے العاز نادکا کو آگ میں پھینکنے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ اب تو یقین کامل ہے کہ آپ ہی اللہ ہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ آگ سے عذاب دینا تو باری تعالیٰ کی خصوصیت ہے۔
शहादत उस्मान के बाद हज़रत साद बिन नबी वक़ास, हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम, हज़रत तलहा और हज़रत सईद बिन ज़ैद ऐसे अकाबर सहाबा मौजूद थे, मगर सबाई प्रोपगंडे का जोर व शोर ही ऐसा था कि उनकी कोशिशें भी कातलीन उस्मान के हसूल की कामयाबी में कारगर होना मुश्किल दिखाई देती थीं। इन हालात में हज़रत आयशा की शख्सियत सबसे कद्दावर और काबिल एहतराम थी। दीगरी उम्महातुल मोमिनीन के मुकाबले में वो ज़्यादा सलाहियतों की मालिक थीं। इन दिनों आपका क़याम बसिलसिला उम्राए मुहर्रम मक्का मौसमा ही में था कि आपको हज़रत उस्मान गनी की शहादत की जानगा खबर मौसूल हुई। उम्रा करने के बाद हज़रत आयशा मदीना मनवरा के लिए रवाना हुए तो सारिफ में असनाए राह उन्हें अबैद इब्ने अबी सलमा ने हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के खलीफा मुंतखब होने की इत्तला दी और ये भी बताया कि मदीना मनवरा में गोगा बर्पा हो गया है, लिहाजा वो रास्ते ही में मक्का मुकर्रमा लौट गईं, जहाँ पहुँचकर उन्होंने काबा के करीब एक पुरजोश तकरीर में हज़रत उस्मान की शहादत के वाक़या, हाइला और फितना फसाद पर इजहार अफसोस किया और मुतालबा फरमाया कि इस्लाह अहवाल की जाए और मुजरिमों को करार वाकई सज़ा दी जाए। हज़रत उस्मान की शहादत का वाक़या इतना संगीन था कि हज़रत आयशा उसे नज़रअंदाज ना कर सकती थी, लिहाजा उन्होंने इस्लाही मुहिम चलाने का फ़ैसला किया। मक्का मौसमा के गवर्नर अब्दुल्ला बिन आमिर हज़रमी ने सबसे पहले आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का साथ देने का ऐलान किया। फिर आमल बसरा अब्दुल्ला बिन आमिर और आमल यमन याली बिन मंबे के अलावा मरवान बिन हकम और कई दूसरे सरकर्दार लोग भी शरीक हो गए। हज़रत आयशा ने बसरा पहुंचकर तकरीर फरमाई और कहा, मुख्तलिफ कबाइल के सोच पसंदों और फितना परदाजों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस शहर पर हमला किया, वहाँ बिदतें ईजाद की और बिदत तराजों को इसमें पनाह देकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत के मुस्तहिक बने। उसके साथ हमामुल मुस्लिमीन हज़रत उस्मान के खून ना हक के मुर्तकिब हुए। उस हराम कत्ल को उन्होंने हलाल बना लिया, नाजायज़ तरीके से माल लूटा और शहर माँ की हुर्मत को पामाल किया, लोगों की इज्जत खेले और हर वो काम किया जिसके लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने उन्हें मना फरमाया है। हज़रत आयशा ने अपनी इस तवील तकरीर के आखिर में फरमाया कि हम इस्लाह अहवाल के लिए कमर बस्ता होकर निकले हैं। हम हर उस शख्स को, हुआ मर्द हो या औरत, छोटा हो या बड़ा, उसका इस्लाह में शरीक और आमादा करने की कोशिश करेंगे जिसका हुक्म हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दिया है। बेशक अल्लाह ताला हमें मारूफ का हुक्म देता है और मुनकर से मना करता है। जंग जमल के वाक़या की तफसीर बहुत तवील है, ताहम मौरखीन ने इस तरफ वाज़ेह इशारा किया है कि जवादी उस्मान ने 36 हिजरी के वसत से पहले बसरे पर हज़रत आयशा के हामियों का कब्जा हो चुका था और उस अरसे में हज़रत अली बसरा के मज़ाफ़ात में पहुंच चुके थे। फरीकैन में मुसालहत की गुफ्तगू जारी थी और बकौल इब्नुल असीर हर शख्स को समझौते का यकीन था, मगर मुनाफिकीन और कातिलीन उस्मान की शरारत से लड़ाई शुरू हो गई। हज़रत आयशा के ज़ेर कमान 30,000 और हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की फ़ौज में 20,000 सिपाही थे। लड़ाई सुबह से शाम तक जारी रही और हैरत ये है कि मुतहारिब ग्रोहों में दोनों तरफ एक ही कबीले और बाज़ औक़ात एक ही ख़ानदान के लोग बहाम लड़ रहे थे। हज़रत आयशा मुहम्मिल में ऊँट पर सवार थी, जिसके साथ पोश को लोहे की चादरों से मजबूत बना दिया गया था। ऊँट की हिफाजत एक किस्म की ज़ीरा बागुतरे से की गई थी। लड़ाई के इख्तिताम तक मुहम्मिल में इस कदर तीर लग चुके थे कि वो हर पुष्ट दिखाई देता था। हज़रत आयशा को कोई तीर न लगा, उन्हें बाजू पर खराश आई। मुहम्मिल के मुखालफीन कुरानी आयात पढ़ते हुए यके बाद दीगरे आते रहे और जख्मी शहीद होकर गिरते रहे।
इस जंग में हज़रत तलहा एक तीर लगने से शहीद हो गए। हज़रत ज़ुबैर हज़रत अली करमुल्लाह वजह से गुफ्तगू करने के बाद मैदान जंग छोड़कर जा रहे थे कि बनु तमीम के बाद अफराद ने उनका तवाक़ुफ़ किया और एक सुनसान जगह पर उन्हें भी शहीद कर डाला। मौरखीन ने यह सराहत भी कर दी है कि जंग से कबल हज़रत अली तलहा और ज़ुबैर के दरमियान मुसालहती बातचीत किसी फैसले कुन नतीजे पर पहुंच गई थी और अगले रोज़ सुलहनामा लिखा जाने वाला था कि रात को सबाइयों और बलवाइयों ने बाहम साजिश करके अहले जमल पर मुंह अंधेरे हमला कर डाला। दोनों तरफ के कायदीन असल हकीकत से बेखबर रहे। हर एक का ख्याल था कि लड़ाई की इब्तदा फरीक मुखालफत की तरफ से हुई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के जिस्म पर 72 ज़ख्म आए। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने इस हकीकत को भांप लिया था कि जब तक जान सारान अस्लाम को हज़रत आयशा का और नजर आता रहेगा जंग जारी रहेगी। तब एक शख्स ने मौका पाकर ऊंट के पांव पर तलवार मारी और ऊंट चिल्लाकर सीने के बल बैठ गया। इस तरह लड़ाई ख़त्म हो गई। जंग जमल में हज़रत आयशा की अस्करी क़यादत और कमान की बदौलत बाज़ लोग उनके उस करतार को तस्लीम करते हैं, मगर एक तबका उस वक़्त भी मौजूद था जिसने उम्मुल मोमिनीन की इस इक़दाम को पसंद न किया और उसमें हज़रत अली के बाज़ मुखलिस हामी भी शामिल थे, लेकिन अक्सरियत इन बलवाइयों और सबाइयों की थी जो हज़रत उस्मान के कत्ल में मुलव्वस थे। उसी तबके के लोगों ने एक तरफ तो हज़रत अबू बकर वाली हदीस को खूब उछाला और दूसरी तरफ ये तासुर आम करने की कोशिश की। एक आदमी ने उस्मान की क़सास का मुतालबा करके हज़रत आयशा ने संगीन गलती फरमाई है जिसका उम्मुल मोमिनीन को खुद भी एहसास था। इसी तबके ने हज़रत अली को फातिहा बरहक साबित किया और उनका मकसद हज़रत आयशा को हसीमत खुदा और जंग जमल में उनकी शिरकत को बातिल ठहराना था। ये सिलसिला बाद तक जारी रहा, यहाँ तक कि इस किस्म की रवायात को तारीख़ इस्लाम में नुमायाँ किया जाने लगा कि हज़रत उम्मे सलमा और बाज़ दूसरे सहाबा ने हज़रत आयशा को उनके उस इक़दाम से बाज रखने की सही की थी। हज़रत उम्मे सलमा के एक मकतूब का हवाला अक्सर मौरखीन कर देते हैं जिसका माखूज़ इब्ने कतीबा और इब्ने अब्दर ऐसे शिया मुअल्लिफ़ीन की गैर मुस्तनद किताबें हैं। इन मुअल्लिफ़ीन के बयान के मुताबिक हज़रत उम्मे सलमा ने जंग जमल के मौका पर हज़रत आयशा को एक तवील ख़त लिखा और आगाह किया कि दीन का सतून गिरने लगे तो औरतें उसे खड़ा नहीं कर सकती और अगर उसमें शिगाह पड़ जाए तो औरतों के बस में नहीं कि इसे भर दें। औरतों में जहाद की अहलियत होती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाज़मन आपको जहाद की वसीयत कर जाते। ज़रा सोचिए, आपके दामन को कुरान ने समेट दिया है, आप उसे फैलाइए नहीं। और क्या आपको याद नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दीन में अफरात बरतने से रोका है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इस तरह किसी सहरा में एक घाट से दूसरे घाट की तरफ ऊन दौड़ाते हुए देख लेते तो आप उन्हें क्या जवाब देती? कल आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होना है और हाल ये है कि आपने अल्लाह के डाले हुए पर्दे को चाक कर दिया और उसके अहद को तोड़ चुकी हो। आपने जो कुछ किया अगर मुझसे सरसद होता तो कसम खुदा की मुझे जन्नत में जाते हुए भी नदामत होती। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम करदा पर्दे को अपना सतर और घर के सहन को अपना किला बनाएं। आप हकीकत में उम्मत के खैर ख्वाह उसी वक़्त होंगे जब आप लोगों की मदद के लिए मैदान जंग की बजाय घर में रहें। अगर मैं आपको वो हदीस सुनाऊं जो मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है तो यकीन है कि मुझे सांप की तरह डसने के लिए दौड़ेंगी। इस ख़त का मतन और इसकी सौंद अगरचे मशकूक और नाकाबिले एतबार है, ताहम उससे वाज़िह होता है कि इस किस्म के प्रोपेगेंडे का मकसद उसके सिवा कुछ और न था कि हज़रत आयशा के ख़िलाफ़ करदार कशी की मुहिम चलाई जाए। इब्ने कतीबा का दावा है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने जंग जमल के मौके पर फरमाया था कि बैतुहा खैरुम मिन हुआ,
खैर मिन हौदजिहा, यानी हज़रत आयशा का घर उनके हवज से बेहतर था। बसरा के एक मशहूर सहाबी हज़रत जारिया बिन कदामा ने हज़रत आयशा से अर्ज़ की थी कि आपके खरूज के मामले में हमारे नज़दीक हज़रत उस्मान की शहादत बहुत हल्की है। अल्लाह ने आपकी हुर्मत कायम की थी और आपको पर्दे का पाबंद किया था, लेकिन आपने इस पर्दे को चाक और इस हुर्मत को पामाल कर दिया। जो आदमी आपसे जंग जायज़ समझता है वो गोया आपके कत्ल को भी नौज़ बिल्ला जायज़ समझता है। तिबरी और इब्नुल असीर दोनों ने लिखा है कि हज़रत आयशा जब अपनी मुहिम के दौरान बसरे पहुंची तो उन्होंने ज़ैद बिन सुहान को अपनी औलाद खालिद से खिताब करके ख़त लिखा और उसे हज़रत अली की हमायत से बास रहने की तलकीन की। ये ख़त पढ़कर ज़ैद बिन सुहान ने कहा कि अल्लाह उम्मुल मोमिनीन पर रहम फरमाए, उन्हें घर में रहने और हमें बाहर निकलकर जहाद करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन जिस अमर की वो पाबंद है खुद तो वो उससे आज़ाद हो गई और हमसे उसकी पाबंदी कराना चाहती हैं। फिर इब्ने सुहान ने ख़त के जवाब में लिखा, यकीनन मैं आपकी औलाद खालिस हूँ, यकीनन मैं आपकी औलाद ख़ास हूँ और आप मेरी माँ हैं, बशर्ते कि आप इस साई और जुहद से किनारा कश हो जाएं और घर लौट जाएं, वरना आपको छोड़ने वाला मैं पहला शख्स हूँगा। और फिर हज़रत अबू बकरा का ये बयान कि मैं जंगे जमल में हज़रत आयशा के साथ शरीक हो जाता, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान ने मुझे बचा लिया कि वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती जो अपना इक़्तिदार किसी औरत के हवाले कर दे। इन मुशाजरात सहाबा को बिल फ़र्ज दुरुस्त मान लिया जाए तब भी हज़रत आयशा की अज़मत और उनके किरदार में कोई कमी वाक़या होती है, ना उससे सैयदना हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की शख्सियत और वक़ार में पहले से कुछ ज़्यादा इजाफा होता है। जहाँ तक उम्मे सलमा से मनसूब इस इरशाद का तवल्लुक है कि दीन का सतून गिरने लगे तो औरतें उसे खड़ा नहीं कर सकती। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के अमली इक़दाम ने उसे गलत साबित कर दिखाया। वो हज़रत उस्मान के खून का क़सास लेने के इरादे से निकली थी और वो उसमें कामयाब रहीं। हज़रत जारिया और ज़ैद बिन सुहान ने आपको खतूत में जिन जज्बात का इजहार किया वो उनकी ज़ाती आरा पर मबनी थी और उनकी कोई शरई हैसियत ना थी। ये बात काबिल ज़िक्र है कि जिस ज़माने में जंगे जमल हुई सहाबा किराम 3 तबकों में मुनक़सिम थे। एक तबका हज़रत आयशा के हम रकाब था और दूसरा तबका हज़रत अली का हम ख्याल, लेकिन एक तीसरे तबके में सहाबा की एक गालिब अक्सरियत शामिल थी। ये सब के सब सहाबा गैर जानबदार और जंगे जमल से बेतअल्लुक़ रहे। उन्होंने हज़रत आयशा का साथ दिया ना हज़रत अली का, दोनों को हक पर समझा और बास ने दोनों के इक़दाम और महाज आराई की तगलीज़ फरमाई। हज़रत अबू बकरा का हस्बे रवायत अपना बयान है कि इस हदीस ने उन्हें बहुत फ़ायदा पहुँचाया यानी उन्हें एक फितने से बचा लिया। उनके अल्फाज से मालूम होता है कि ये हदीस उन्हें जंगे जमल के मौका पर याद आई और फिर हदीस का मफ़हूम वाज़ेह है कि वो इसमें शरीक नहीं हुए हों। इसमें शरीक नहीं हुए होंगे, लेकिन तमाम मुहद्दिसीन और मुअर्रिख़ीन इस अमर पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हज़रत अबू बकरा ने जंगे जमल में शिरकत फरमाई और वो हज़रत आयशा के साथ थे। उन्होंने हज़रत अली के ख़िलाफ़ इस जंग में हिस्सा लिया। इब्ने हजर अस्क़लानी के बकौल अबू बकरा की हदीस से बज़ाहिर हज़रत आयशा के अमल व किरदार के कमज़ोर होने का वहम होता है, यानी ये हज़रत आयशा के मौक़िफ़ को कमज़ोर कर देती है, जबकि हज़रत अबू बकरा के मुसलिक के मुतल्लिक़ मशहूर बात यही है कि वो लोगों के दरमियान असला अहवाल के मुतालबे में हज़रत आयशा की राय की तायीद में थे। उनका मकसद जंग करना हरगिज़ नहीं था, लेकिन जब जंग भड़क उठी तो उन लोगों के लिए जो हज़रत आयशा के साथ थे जंग करने के सिवा कोई चारा कार ना रहा। फ़तह अल-बारी शरह सहीह अल-बुखारी के मुताबिक इब्ने बत्ताल ने कहा कि हज़रत आयशा और उनके साथी जंग नहीं चाहते थे, और इस बात की दलील ये है कि किसी ने भी ये बात नकल नहीं की कि हज़रत आयशा के साथ जो लोग थे
مثلاً حضرت طلحہ، زبیر اور سعید بن العاص وغیرہ، انہوں نے حضرت علی سے امر خلافت میں جھگڑا کیا ہو یا لوگوں کو اپنے میں سے کسی ایک کی طرف دعوت دی ہو کہ اسے خلیفہ بناؤ۔ سوال یہ ہے کہ اس حدیث نے ابو بکرہ کو کیا فائدہ پہنچایا؟ یہ کہ وہ سمجھ گئے کہ حضرت عائشہ کے ماتحت جنگ کرنے والے مغلوب ہو جائیں گے، حالانکہ وہ خود بھی ان کے زیر کمان شریک جنگ تھے، لیکن یہ یاد آ جانے کے بعد بھی حسب تصریح ابن بطال کو دم آخر تک حضرت عائشہ کی رائے پر قائم رہے۔ انہوں نے اپنی رائے سے بھی رجوع نہیں فرمایا۔ حضرت علی کی حمایت پر بھی آمادہ نہ ہو سکے۔ یہ حضرت ابو بکر پورا سراسر بہتان ہے۔ یہ حضرت ابو بکر پر سراسر بہتان ہے کہ وہ ارشاد نبوی یاد آ جانے کے باوجود اپنی رائے پر قائم رہیں اور اسے رجوع نہ فرمائیں۔ اس لیے بلا شبہ کہا جا سکتا ہے کہ جس نے یہ روایت وضع کی، اس نے ایک طرف تو حضرت عائشہ کی پوزیشن کو